A very good morning to all the students of class A. Dear students, how are you all? I hope you people are fine and taking good care of yourself and your family members too. Dear students, the thought of the day is the winners. The winner is a dreamer who never gives up. I repeat, the winner is a dreamer who never gives up. Means a person who dreams will never give up. He will try to fulfill his dreams and succeed in the life. On that note, I, Neela Seni, your SST teacher, recaps the topic which we have completed, that is the tribal tycoons and the golden vision. So dear students, in this chapter we had done about the Birsa, who was a tribal of a Munda. Munda is the tribal group which was were living a settled life. They were neither the hunters nor the food gatherers, and even not they did not practice the rearing of the sheep. So the Birsas was born in the Munda dynasty, tribes. Munda was very popular in the Munda जो बिरसा था बहुत पॉपुलर था अपनी मुंडा डायनेस्टी में क्योंकि he used to cure the diseases. He has a miraculous power to cure the diseases, and also he used to multiply the grains, and he worked for the tribal people a lot, not only for the Munda tribes, for other tribes also. So he fought for everyone, even the Sanathas and the Orients. The Sanathans and the Orients, for them also he fought a lot, fought from the Britishers. Birsa declared that he would safeguard tribes from daikons, and daikons he told us, daikons कौन होते हैं? Outsiders जैसे कि ये लोग मानते थे missionaries were the daikons, the landlords were the daikons, the moneylenders were the daikons, and the government and Britishers, because all of them exploited them a lot, and they were in a deep problem because of because when the freedom fighters was going on, nobody fought for the tribal people. Even the freedom fighters did not give attention to the tribals. So the Birsa took over the responsibility for his tribal people. Now, how did the tribal groups live? अब ये जो tribal groups है कैसे जीते थे? कुछ करते थे झूम cultivation. Some of them were the settled. Then the food gatherers and the hunters and the gatherers. Hunters and the gatherers. And there were animal hunters, then there were the animal herders. Animal herders. So these were the types of on which they lived. Like as we have already discussed, that the Jhum cultivators were who practiced the shifting cultivation, that is done in the hilly areas of the eastern and the central India. In eastern and the central India, this is practiced, that is Jhum cultivation. And it is in which the land is first cleared, land को पहले clear किया जाता है, and then cultivation is done on it. फिर उसके बाद उसके ऊपर cultivation की जाती है. अब hunters और gatherers जो हैं वो हैं खोंडा. Khons of
खोन्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के जो खोन्स है ये भी ट्राइब्स हैं, ये प्रैक्टिस करते थे। एंड दी बाइगल्स जो थे ये कहाँ के थे? सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया एंड दे फॉलोड दिस प्रैक्टिस, ये लोग फॉलो करते थे इस प्रैक्टिस को। अब ये आता है कि इस प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या चीजें करते थे। व्हाट वाज बीइंग प्रैक्टिस अंडर द हंटिंग एंड गैदरिंग। अब ये लोग बेचारे क्या करते थे? दे यूज्ड टू कलेक्ट द थिंग्स फॉर द, दे यूज्ड टू हंट कलेक्टिवली, एक साथ मिलके हंट किया करते थे, सब जन मिलके करते थे। गैदर्ड फ्रूट्स एंड रूट्स, फ्रूट्स और रूट्स का इकट्ठा करते थे। क्यों? एंड यूज श्रब्स, फिर श्रब्स यूज करते थे, श्रब्स। और श्रब्स यूज होता था मेडिसिन पर्पस के लिए, मेडिसिन दवाइयाँ ये लोग बनाया करते थे। और सोल्ड फॉरेस्ट थिंग्स टू दी लोकल मार्केट, जो फॉरेस्ट की जो चीजें थी वो लोकल मार्केट में उसे बेचा करते थे। उसके बाद जो लोकल वीवर्स होते थे उनको इनकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि डाइंग के लिए जो यूज होता था फ्लावर, दैट वाज द कुसुम फ्लावर। पहले डाइंग इतना इजी तो था नहीं कि जैसे आजकल होता है, तब तो फिर किसी ने फ्लावर्स या किसी तरीके से डाइंग किया जाता था। तो ये कुसुम के फ्लावर्स होते थे जो कि डाइंग के हेल्प करते थे। सम टुक दी सेटल वन के पास लैंड्स होते थे, जैसे कि जो मुंडा डायनेस्टी, जो ये मुंडास थे, ट्राइब्स थे, वो सेटल्ड ट्राइब्स थे, तो उनके पास लैंड थी अपनी। एंड दे हैड, तो द ब्रिटिश ऑफिसर सॉस द सेटल ग्रुप लाइक दी गोंडास एंड दी सांथाल्स एज द civilized than the hunters and gatherers। तो इनकी क्या रिस्पेक्ट होने लगी, ब्रिटिशर्स ना इन ट्राइब्स को जो सेटल्ड होते थे उनको इज्जत से देखने लग पड़े। दे थॉट कि दे हैव सम रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी बिकॉज जिसके पास लैंड होगी, और ये भी चाहते थे कि जो लैंड हो वो ही रहे, ना हंटर्स हो, ना गैदरर्स हो, ना ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो, क्योंकि इसमें दे कुड नॉट कलेक्ट दी लैंड रेवेन्यू। एंड लैंड रेवेन्यू तो तभी होगा ना जब लैंड होगी, जिसके पास अपनी जमीन होगी। तो लैंड रेवेन्यू उसी से लिया जाता था जो कि प्रैक्टिस करता था सेटल्ड कल्टीवेशन, जो कि सेटल्ड कल्टीवेशन करते थे। तो ब्रिटिशर्स को दिल में थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट था, दैट वाज फॉर द सेटल्ड पीपल, नॉट फॉर द जूम कल्टीवेशन, एंड इवन दे डिड नॉट लाइक द हंटर्स एंड द गैदरर्स। नाउ हाउ डिड द colonial rule affect the tribal lives? The lives of the tribal groups changed during the British rules। ब्रिटिश के रूल के टाइम इनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई थी। Their faith were tried, उनका फेथ बिल्कुल मर चुका था, क्योंकि टू चेंज दी मिशनरी, उनको बिल्कुल फोर्स किया जाता था। जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वो हमेशा उन लॉ रिलेटेड जो फॉरेस्ट होते थे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते थे ऑन दी ट्रेडिशनल राइट्स, वो हमेशा ट्रेडिशनल राइट्स पे इम्पैक्ट करते थे और वो उनका नहीं रिस्पेक्ट देते थे। एंड दे यूज्ड टू थिंक कि दीज पीपल आर नॉट एट ऑल हैविंग अ गुड कल्चर, तो इनको बहुत ज़्यादा सप्रेस रखते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ट्राइबल चीफ्स enjoyed economical power। जो ट्राइबल चीफ्स होते थे, what happened to the tribal chiefs, हम उस टॉपिक पे हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स, जब अराइवल ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब जो ट्राइबल चीफ्स थे इनके पास अपनी लैंड होती थी, इनके पास इकोनॉमिकल पावर होती थी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे और उसके बाद इनका अपने हक्स होते थे, ये अपना रूल चलाते थे। तो अंडर द ब्रिटिश रूल्स, before the British rule arrived, the tribal group enjoyed economical and had the right to administer and control their territories। वो अपने अपने एडमिनिस्टर करते थे और कंट्रोल करते थे अपनी टेरिटरीज को। Now under the British rule, the functions and the powers of the tribal chiefs changed। इसके अंदर उनके रूल्स सब चेंज हो गए। As they were allowed to keep their land titles but lost their administrative
they lost their administrative rights. अपने administrative rights को उन्होंने खो दिया, जबकि उनके पास ये था अपने लैंड अपने पास रखो, but administrative rights नहीं है तुम्हारे. And were forced to follow laws made by British officials in India. उनको फोर्स किया गया था फॉलो करने के लिए लॉज जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया के अंडर. Rules made by British took over the entitlement and power to administer the forest areas. और ब्रिटिशर्स ने बोला कि अब ये जो है ये हमारे पास रूल्स है, we will take care of the about the forest areas. These are not under you. जो उनको जो ट्राइबल चीफ्स होते हैं उनको बोल दिया कि इसकी केयर आपको करने की जरूरत नहीं, we'll take care of these things. Now next comes the what happened to the shifting cultivation. The Britishers were uncomfortable with the shifting cultivation. वो shifting cultivation से बिल्कुल खुश नहीं थे. तो as it was more easy to control them, मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि जो सेटल्ड होंगे उनको कंट्रोल करने में इजी रहेगा. जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता रहेगा तो ना तो उसके पास एरिया है, ना वो लोग कैलकुलेट कर सकते, ना वो हंटर्स के पीछे जा सकते, ना वो देख सकते कि हंटर और गैदरर्स कहाँ हैं, तो कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था शिफ्टिंग कल्टीवेशन. द ब्रिटिशर्स वांटेड टू रेगुलेट रेवेन्यू सोर्सेज, क्योंकि वो रेवेन्यू भी नहीं ले सकते थे ना. जब लैंड होगी उसी में रेवेन्यू लिया जाएगा, जब लैंड नहीं होगी तो रेवेन्यू कैसे लिया जाएगा. द ब्रिटिशर्स efforts to select jhum cultivation was not very successful in northeast part. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो इन्होंने जूम कल्टीवेशन के अगेंस्ट बोला वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था. वाई? बिकॉज वहाँ पे जो लैंड थी वो फर्टाइल ही नहीं थी ना कल्टीवेशन के लिए, तो फिर वो तो नॉर्थ ईस्टर्न में तो इनकी चली नहीं बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स की. आफ्टर फेसिंग widespread protest, the Britishers had to allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of forest. इसके बाद भी उनको फिर ब्रिटिशर्स को कहना पड़ा कि कैरी ऑन, क्योंकि कुछ फायदा नहीं हुआ, उनको करवाना ही पड़ा. उनको कैरी ऑन इसलिए करवाना पड़ा, अब आगे बताते हैं आपको. जब इन्होंने फॉरेस्ट लॉज निकाले ना तो उसमें क्या कर दिया कि बोला कि हम कुछ फॉरेस्ट दे दिए उनको ट्राइब्स को, एंड सम ऑफ देम दे केप्ट फॉर देयर कि हम टिम्बर वगैरह बनाएंगे तो हमें चाहिए ये लैंड. तो जो ट्राइबल्स थे उन्होंने गेट टुगेदर कर दिया. दे सेड कि वी वोंट कम फॉर द वर्किंग. और इनको जब लेबर नहीं मिल रही थी ब्रिटिशर्स को तो इनको उनके आगे झुकना पड़ा. दैट्स व्हाई दे हैड टू गिव देम, क्योंकि लेबर तो चाहिए ही थी. विदाउट लेबर हाउ कुड टिम्बर भी क्या कर लेते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे इनका फॉरेस्ट में रूल रहता, दे नीडेड द लेबर. So in most of the central parts shifting cultivation was prohibited and lands were assigned to the cultivators. कई जगह पर shifting cultivation को चलाना पड़ा और जो lands थे, जो जमीनें थी वो इन्हें देनी पड़ी for the cultivation. Now the problems with the trade. अब trade के साथ क्या क्या problems थी? During the 19th century, tribal groups found the trade and the money lenders were coming into the forest and forcing cash loans on the tribal people. क्या हो रहा था, ये लोग आ रहे थे और कैश लोन फोर्सफुली पूछ रहे थे कि चाहिए, फोर्सफुली देते थे. फिर क्या करते थे, उनसे ही सामान खरीद के और लो वेजेस पे उनको वर्क करवाते थे वहीं पर ही. पहले उनको लोन दे दिया, फिर लो वेजेस पे उनसे वर्क करवा लिया. फिर वो क्या हुआ, ये इस साइकिल से ये ट्राइबल्स दुखी हो गए, परेशान हो गए बिल्कुल, और मिजरी हो गई इनकी लाइफ, बिल्कुल मिजरेजियस हो गई. क्यों? क्योंकि इंडियन सिल्क बहुत ज़्यादा डिमांड में था यूरोप में, और जो कोकून था, ये लोग जो संथाल्स थे ये कोकून्स निकालते थे और इनसे 5 एजेंट्स क्या करते थे, इनसे सस्ते में लेके 5 टाइम्स द रेट में उसको सेल कर देते थे. सेम वाज इन द केस ऑफ कोकोनट. कोकोनट जो थे वो बुंदवान्स और जो गया दे वर द ट्राइबल्स जो कि सोल्ड किया करते थे और किया करते थे 5 टाइम्स प्राइस. तो इससे क्या हुआ, ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए. डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन बाय ट्राइबल्स एंड वर टेकन ओवर बाय द ट्रेडर्स एट लेस प्राइस एंड सोल्ड इन द मार्केट एट हाई प्राइस. दिस लेड द ट्राइबल्स टू लिटिल टू सर्वाइव. बड़ी मुश्किल हो गई थी उनको सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए मुश्किल हो रहा था. तो उनने परेशान हो गए कि अब क्या करना चाहिए, बिकॉज ये तो मिसयूज हो रहा है हमारा.
तो वो निकल गए इन सर्च ऑफ वर्क कि हम कुछ और काम करेंगे। तो उनको मिला काम क्या, टी प्लांटेशन एंड द कोल माइंस में, लो वेजेस पे। बट उनको फिर एक उम्मीद तो थी कि चल कुछ तो कर रहे हैं, तो लेट अस शिफ्ट द वर्क। द ट्राइबल्स were recruited in large numbers to the workers of the tea plantation and coal through construction, low wages. अब क्या हुआ, द क्लोज लुक, अब हम इस पे क्लोज लुक करेंगे। द ट्राइबल ग्रुप्स रिबेल्ड, इन्होंने रिबेल किया, लड़ाई की, ताकि हम ऐसे तो नहीं चलेगा कि हम सब इनका सुनते जाएंगे, जो आएगा वो हमें दबा लेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दे स्टार्टेड रिबेलिंग, उन्होंने कहा हम रिबेल करेंगे, हम फाइट करेंगे अपने राइट्स के लिए। Let's see what happens. We have to fight for our rights. In different parts of the countries, against the changes in the laws, जब changes हुए laws में, restrictions on their practices, उनके practices पे restrictions डाल दी, the new taxes they had to pay and exploitation by traders and money lenders, उनको पे भी ज़्यादा करना पड़ा और उनकी exploitations भी हो गई मनी लेंडर्स से, और मनी लेंडर्स भी एक्सप्लॉइट करने लग पड़े और लैंडलॉर्ड्स भी एक्सप्लॉइट करने लग पड़े, गवर्नमेंट तो एक्सप्लॉइट कर ही थी। नाउ दिस इज टू बी लर्न, दैट इज अपराइजिंग, जो अपराइजिंग हो रहे थे ऑफ ट्राइबल्स। अपराइजिंग ट्राइबल्स जो थे, पहले थे खो, ये थे 1831 to 832. Then came the Santhal, they were in 1855. Then came the Mundas, and they were in 1895 till the death of the Birsa, that was 1900. Then came the last was the Bastar, and that was in 1910. So these were the upcoming of the tribals, जो uprising tribals जो थे, जिनका मेन नाम आता है हिस्ट्री में। Now at the end of the chapter we will be doing Birsa Munda. Birsa Munda, a movement began under the leadership of Birsa Munda. The Birsa officials were worried in the political aim of the Birsa movement was to drive out missionaries, money lenders, landlords and the government. And क्योंकि ये लोग चाहते थे इन सबके राज्य से हट जाए, हमारा अपना राज्य हो, और जो कि नेतृत्व में चले, जिसका कि टेक केयर किया जाए बाय बिरसा। तो दे वर वेरी मच, उन्होंने बायकॉट करने का सोच लिया। दे वर वेरी मच एंग्री विद द मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज, द मनी लैंडर्स, द लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट। इन 1895 तो जो बिरसा था उसको अरेस्ट कर लिया। ही वॉज बीन अरेस्टेड इन 1895 कि ये प्रोवोक कर रहा है पीपल को। दे हैड दिस थिंग कि ही इज प्रोवोकिंग द पीपल। तो व्हाट डिड ही डू देन, बट ही वाज रिलीज्ड इन 1897 एंड ही टूर्ड द विलेजेस टू गैदर पर्पस। वो अपना पर्पस इकट्ठा करने के लिए वो टूर करने लग पड़ा विलेजेस में, गांव से गांव जाने। ही अर्ज्ड पीपल टू डिस्ट्रॉय रावंस, उसने कहा कि लोगों को समझाया कि डिस्ट्रॉय करना है हमें रावंस को। रावंस कौन थे? डाइकोन्स, डाइकोन्स एंड द यूरोपियंस। डाइकोन्स कौन हो गए इनके लिए? आउटसाइडर। और वो आउटसाइडर कौन है? लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स एंड द मिशनरीज ऑफ द क्रिश्चियंस एंड गवर्नमेंट। Now after that he died in 1900 because of the disease named cholera. He got cholera and he died because of that. And what happened was, the effect of uprising, the British made the law strict so that the money lenders could not exploit the tribals by snatching away their land. Britishers ने efforts किए इनके लिए
कि भाई जो मनी लेंडर्स हैं इनको ना एक्सप्लॉइट करें. It showed the power of tribals that they can also fight for their rights and could be heard. कि भाई उनको भी सुनो, उनके भी rights के लिए उनको बोलने दिया जाए, and that would be heard. Now the effects of the tribal chiefs. क्या effect था? Effects on the shifting cultivation, effects on forest laws, problems with the trades, the search of work. ये सारी problems, ये सब चीज़ें होती गई थी जब तक कि प्रॉपर लॉज इनके लिए नहीं मिले. So dear students, on that note, we have completed this chapter and will be doing a new chapter in the next session. Thank you and have a nice day.